ઓકે, ચેપ્ટર છે ડાયરેક્ટ એન્ડ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ. અને ફર્સ્ટ ડેફિનેશન બે જોઈશું. એક તો છે એક્શિયલ લોડ. હવે એક્શિયલ લોડ મતલબ શું હોય સમજીએ કે સપોઝ આ એક કોઈ કોલમ છે, રાઈટ, અને કોલમની એક્સિસ, આ કોલમને હું સપોઝ આ લેન્થ કઈ અહીંયાથી આમ ડ્રો કરું છું. તો આની આ જે છે આ સેન્ટર એક્સિસ છે, સમજ. અહીંયાથી આ લાઈક જે ઇમેજનરી લાઈન જાય કોલમની લેન્થ વાઇઝ, દેટ ઇઝ નોન એઝ અ એક્સિસ. અને આ જ એક્સિસ ઉપર લોડ હોય, અહીંયાથી આ લોડ સપોઝ આ જ એક્સિસ પર હોય તો આને કયો લોડ કહેવાય? એક્શિયલ લોડ, રાઈટ. ડેફિનેશન શું બનશે આની? વેન લોડ ઇઝ એક્ટિંગ એલોંગ ધ લોન્જિટ્યુડિનલ એક્સિસ of column, it is known as the axial load, right. સેકન્ડ છે એસેન્ટ્રિક લોડ. હવે એસેન્ટ્રિક લોડ મતલબ શું? તો કે લોડ એક્સિસ ઉપર ના હોય. લોડ જે છે તે ડાયરેક્ટ એક્સિસ પર ના હોય, પણ લોડ સપોઝ અહીંયા હોય ડિસ્ટન્સ પર, તો આટલું જે ડિસ્ટન્સ છે દેટ ઇઝ નોન એઝ એસેન્ટ્રિસિટી, રાઈટ. ફોર્સ અહીંયા એપ્લાય થાય છે, રાઈટ, અને સેન્ટ્રોઇડલ એક્સિસ એની આ છે. તો આટલું જે ડિસ્ટન્સ છે that distance is known as a eccentricity, right, and this load is known as eccentric load. ઓકે, આ બે ડિફરન્સ. સપોઝ હું આને 2D માં ડ્રો કરું તો અહીંયાથી કંઈક આ કોલમ છે, આની આ એક્સિસ છે. સેમ વે આને પણ અહીંયા ડ્રો કરું છું, આની આ એક્સિસ છે. અહીંયા આગળ એક્શિયલ લોડ હોય તો લોડ એની એક્સિસ પર જ હોય, બરાબર. પણ અહીંયા આગળ હોય તો લોડ અહીંયા કંઈક સાઈડ ઉપર હોય. લોડને હું ટી નોટેશન આપું છું. તો આટલું જે ડિસ્ટન્સ છે દેટ ઇઝ નોન એઝ એસેન્ટ્રિસિટી ઈ, રાઈટ. આ ટી લોડ છે. તો આ એક્શિયલ લોડ થશે અને આ એસેન્ટ્રિક લોડ થશે. ઓકે. બીજી આમાં જે ફોર્મ્યુલા છે યાદ રાખવાની, એના માટે ડાઉટ આવે તો પૂછતો જજો. એક છે ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ. તો ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ સિગ્મા 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી અપોન એ. આ ફોર્મ્યુલા છે ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ. ઓકે. તો સેકન્ડ છે બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ. બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ sigma b is equal to m upon z, where m upon z means I upon y. therefore હું એવું પણ લખી શકું m into y upon I. y ડિવાઇડના ડિવાઇડમાં છે એટલે ઉપર જાય છે. ઓકે, એટલે that means z is equal to I upon y. આટલું છે. તો z ની જગ્યાએ મેં આ લખ્યું, તો મને સિગ્મા બી ની ફોર્મ્યુલા મળી m into y upon I. ક્લિયર? તો બે ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની છે, ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ અને બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ. ક્લિયર છે એટલું? એમ એટલે મોમેન્ટ છે, મોમેન્ટ. આઈ એટલે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા. તને યાદ હોય તો આપણે આઈ એક્સ એક્સ આઈ વાય વાય ફાઇન્ડ કરતા હતા ને, તે છે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા. ઓકે. અને વાય એટલે ડિસ્ટન્સ ઓફ એક્સ્ટ્રીમ ફાઈબર ફ્રોમ સીજી ઓફ ધ કોલમ. ડિસ્ટન્સ ઓફ એક્સ્ટ્રીમ ફાઈબર ફ્રોમ સીજી ઓફ કોલમ. તું આ સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજે એવું હોય ને તો, બરાબર.
નેક્સ્ટ છે મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ. મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ. હવે મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો આની સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની, બહુ ડિટેલમાં ના જઈએ તો. મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ મીન્સ સિગ્મા મેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા 0 પ્લસ સિગ્મા પી. સિગ્મા 0 મીન્સ ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ, સિગ્મા પી મીન્સ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ. આ બેનું એડિશન કરું તો મને મળશે મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ. આને કહેવાય સિગ્મા. સિગ્મા મીન્સ સ્ટ્રેસ. મેક્સિમમ છે તો મેક્સ, MAX. ડાયરેક્ટ છે તો 0, બેન્ડિંગ છે તો બી. નોટેશન યાદ રહેશે? નોટેશન બધા. એટલે મેક્સિમમ સ્ટ્રેસની ફોર્મ્યુલા સિગ્મા મેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા 0 પ્લસ સિગ્મા બી. હવે હું આની બધાની વેલ્યુ મૂકું ને એક નવું ઇક્વેશન બનાવું તો અલગ થાય, તો નથી બનાવતો, ખાલી હું આટલું જ યાદ રાખીશ. રાઈટ? એટલે સિગ્મા 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી અપોન એ, સિગ્મા બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ અપોન ઝેડ, where z is equal to I upon y, એટલે સિગ્મા b is equal to my upon I, અને સિગ્મા 0 is equal to p upon a. રાઈટ? સિગ્મા 0 સિગ્મા b આ બે મને મળે છે, બંનેનું એડિશન કરીશ તો મને સિગ્મા મેક્સ મળશે. ઓકે. અને સેમ વે મિનિમમ સ્ટ્રેસ, તો મિનિમમ સ્ટ્રેસ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો સિગ્મા મિનિમમ, સિગ્મા એટલે સ્ટ્રેસ, મિનિમમનો મિનિમમ MIN ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા 0 માઇનસ સિગ્મા બી. ક્લિયર? દેટ મીન્સ હું સિગ્મા 0 અને સિગ્મા બી ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ કરી લઈશ, પછી એનું એડિશન કરીશ તો મેક્સિમમ થશે, અને સિગ્મા 0 માંથી સિગ્મા બી માઇનસ કરીશ તો મને મિનિમમ મળશે. બોલો, આવડશે? Okay, where sigma 0 is equal to direct stress, sigma b is equal to bending stress, m is equal to moment is equal to force P into eccentricity E. E એટલે એસેન્ટ્રિસિટી, મેં તને સ્ટાર્ટિંગમાં શીખવાડ્યું હતું, બરાબર? જોને લખી દઈએ, E is equal to एसेंट्रिसिटी. मतलब जो फोर्स है वो सेंट्रोइडल एक्सिस से कितनी दूर है, द डिस्टेंस इज नोन एज एसेंट्रिसिटी. Z सेक्शन मॉड्यूलस, Z सेक्शन मॉड्यूलस इज इक्वल टू I अपॉन y. I ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और y वो यहाँ पे लिखा है मैंने आपको, ये वाला. ठीक है? डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर ऑफ CG, फाइबर फ्रॉम CG ऑफ कॉमन. बोलो, क्लियर છે આટલું? તારે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લે, અને લઈ લે એટલે મને કહેજો. ઓકે ઓકે, આગળ જઈશું. ઓકે, નેક્સ્ટ છે સાઇન કન્વેન્શન. સાઇન કન્વેન્શન, સાઇન કન્વેન્શનમાં શું છે? કોમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ, compressive stress is equal to positive. તો બીજું કયું આવશે? ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ. કોમ્પ્રેસિવ હોય તો બીજો ટેન્સાઇલ આવે છે. સ્ટ્રેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નેગેટિવ. રાઈટ? અને સિગ્મા 0 ઇઝ ગ્રેટર દેન સિગ્મા પી, then sigma minimum is equal to positive, એટલે કે કોમ્પ્રેસિવ આવશે. અને if sigma 0 is less than sigma b,
then sigma minimum is equal to negative, that means टेंसाइल। समझे मसू कहते कि सिग्मा जीरो की वैल्यू अगर सिग्मा बी से ज़्यादा है तो सिग्मा जीरो की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बी, तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और पॉजिटिव आएगा दैट मीन्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा, ये जो स्ट्रेस आएगा दैट इज़ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, पर इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो आपका आंसर बट नेचुरल नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा इट मीन्स इट इज़ अ टेंसाइल स्ट्रेस। बोलो क्लियर एट लो? ओके, नेक्स्ट पर जैसू ठीक है, तो अब जाएंगे हम एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हूँ मैं, ए रेक्टेंगुलर कॉलम of size 500 mm multiplied by 250 mm carries an eccentric carries an eccentric load of 1000 kilonewton on the axis bisecting the thickness at 150 mm at 150 mm from centroidal axis, from centroidal axis. Find maximum and minimum. Find maximum and minimum resultant stress and draw stress diagram ठीक है, तो इतना डेटा है आपके पास। सॉल्यूशन ओके, तो लिखा क्या है, ए रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ साइज 500 mm बाई 250 mm, मतलब कॉलम की साइज है मेरे पास। साइज कितनी है हमारे पास, साइज इज इक्वल टू 500 mm मल्टीप्लाई बाई 250 mm। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्ट्रेस फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सी है, सिग्मा जीरो के लिए फॉर्मूला कौन सी है, P अपॉन ए, और सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस के लिए है M अपॉन जेड, वेर जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई, राइट। तो ये सिग्मा बी की फॉर्मूला है। तो मुझे एरिया तो फाइंड करना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एरिया फाइंड कर लेता हूँ। 500 इंटू 250 कितना हो रहा है, 125,300, ठीक है। तो 125,300 mm², डन, ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, कैरीज एन एसेंट्रिक लोड, लोड कौन सा है देखो, एसेंट्रिक लोड बोला है, और कितना लोड है 1000 किलोन्यूटन, मतलब लोड क्या हो गया, P इज इक्वल टू 1000 किलोन्यूटन, पर ये mm² में है तो ये किलोन्यूटन में नहीं चलेगा, मुझे न्यूटन में चाहिए। तो 1000 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा।
पता चल रहा है? हेलो। हाँ ठीक है। ठीक। अब आगे जाते हैं। ऑन द एक्सिस लोड कहाँ पर है अभी? ऑन द एक्सिस बाइसेक्टिंग द थिकनेस, थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब सपोज ये कॉलम है और ये कॉलम है 500 बाई 250 का, तो उसकी थिकनेस कौन सी है कॉलम की? 250। उसको बाइसेक्ट कर रहा है ये एक्सिस, और 500 का सेंटर मतलब ये एक्सिस, मतलब ये सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई उसकी। तो ये लोड कहाँ पर है? 1000 kN का लोड कहाँ पर है? ऑन द एक्सिस बाइसेक्टिंग द थिकनेस, मतलब थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एक्सिस पर कहीं पर है। कहाँ पर है? 150 mm फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब सेंटर से 150 mm, मतलब समथिंग इतना डिस्टेंस। ये कितना, ये क्या है? एसेंट्रिसिटी ई, और ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 150 mm। पता चल रहा है? ये लोड है पी। कितना पता चल रहा है? ओके। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस, मतलब सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इतना मुझे चाहिए। अब मैं इसको निकल रहा हूँ। और चीज़ें जो मुझे चाहिए वो कौन सी होगी? अभी देखो, सिग्मा जीरो ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं हम, पी अपॉन ए करके। ठीक है। दूसरा मुझे चाहिए आई अपॉन, सॉरी जेड, एम अपॉन जेड। तो एम मतलब क्या हो जाएगा? एम इज इक्वल टू पी इंटू ई। तो पी तो है मेरे पास 1000 इंटू 10⁻³ इंटू ई की वैल्यू कितनी है? 150। कितना आ रहा है ये आंसर? बोलो। ई एन जी बटन दबाओ, ई एन जी बटन दबाओ। 8, या फिर 150 इंटू 10⁻⁶ कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है। पॉइंट में अगर इस तरफ ले रहा हूँ तो 2 पॉइंट इस तरफ ले रहा हूँ तो ये 8 हो जाएगा ऐसा। ओके। तो m मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? z चाहिए। z के लिए मुझे क्या चाहिए? i अपॉन वाई। तो उससे सबसे पहले मुझे i फाइंड करना पड़ेगा। तो i की फॉर्मूला कौन सी हो जाएगी? i की फॉर्मूला बोलो क्या है? आई एक्स की फॉर्मूला। बी डी क्यूब बाई 12। अब बी डी क्यूब में सर बी कौन सा है और डी कौन सा है, समझ लो। तो सपोज ये जो अपना कॉलम है, यहाँ से ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो जो बाइसेक्ट हो रहा है उसको बी ले लो, और बाकी का जो पोर्शन है वो डी। तो बी क्या हो जाएगा? 250 इंटू 500³ डिवाइडेड बाई 12। तो आई की वैल्यू फाइंड करो कितनी हो रही है? हम्म, डन। तो मैंने वही लिख दिया। ओके। अब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई मतलब जो 500 है उसका हाफ करेंगे। उसका सी जी ऐसा था ना। देखो वाई मतलब क्या था आपका? कि सी जी जो है वहाँ से एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस, मतलब ये क्या हो गया? सॉरी, यहाँ से लेकर इतना डिस्टेंस ये, तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 500 का हाफ मतलब 250 mm। राइट। तो y इज इक्वल टू 250 m। ओके। हेलो, पता चल रहा है? ओके। अब आपको क्या करें? हाँ बोलो।
देखो, ये देखो, ये बी है, ये डी है, ठीक है। और एक्सिस के हिसाब से जाना है, ये एक्सिस इसको कट कर रहा है अभी, तो ये बी हो गया। तो y मतलब सिंपल याद रखोगे ना, y इज इक्वल टू डी बाई टू, सिंपल। तो ये d कौन सा है आपका, 500 है, तो 500 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्लियर से, मतलब इसका हाफ, तो ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा ये y, तो 500 का हाफ हुआ, मतलब 250 हुआ, ऐसा। ओके, अब सिग्मा जीरो आपको फाइंड करना है, तो पी अपॉन ए करोगे तो पी आपके पास अवेलेबल है 1000 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया ए कितना है 125,000। कितना आंसर आ रहा है ये बताओगे। दूसरा सिग्मा बी मुझे फाइंड करना है, तो एम अपॉन एम इंटू वाई अपॉन आई, तो n 150 इंटू 10⁻6 इंटू वाई है आपके पास 250 अपॉन आई की वैल्यू है 2.60 इंटू 10⁻9। कितना आ रहा है ये बताओगे सिग्मा जीरो। हेलो, और ये सिग्मा बी आ रहा है कुछ मेरा 14.42 न्यूटन पर एनम स्क्वायर। चेक कर लो, आंसर आ रहा है। हो गया। ठीक है, चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप, बाद में करते रहना। ये स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं, वो आपने ब्रैकेट में करना है, नीचे वाला जो है ना वो ब्रैकेट में करना, बाद में करना वो आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है ना वैसा ही कैल्सी में लिखना, अपने आप आ जाएगा। ठीक, अब देखो, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड दो चीज़ें करनी है, एक सिग्मा मैक्स और दूसरा है सिग्मा मिनिमम। तो सिग्मा मैक्स फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सी है, सिग्मा जीरो प्लस सिग्मा बी। अब सिग्मा जीरो की वैल्यू है 8, सिग्मा बी की वैल्यू है 14.42, तो सिग्मा मैक्स कितना आएगा आपका 22.42 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया मेरा सिग्मा मैक्स का। और सिग्मा मिनिमम मेरा कितना आएगा, तो सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू सिग्मा जीरो माइनस सिग्मा बी, मतलब 8 माइनस 14.42 कितना आ रहा है।
डन। तो सिग्मा मिनिमम मेरा नेगेटिव आ रहा है। ओके, अब तो दो जो क्वेश्चन पूछा था वो हमने फाइंड कर लिया है। अब मुझे और क्या चाहिए, फाइंड करना है क्या है मुझे, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है ड्रॉ स्ट्रेस डायग्राम। तो स्ट्रेस डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, एकदम सिंपल है, समझ लो ध्यान से। ये कॉलम का मैं प्लान ले रहा हूँ जो अभी हमने पहले भी ड्रॉ किया हुआ था। ये 500, ये 250 एक्सिस है, ये दूसरी एक्सिस यहाँ पर है। ठीक, और जो लोड है वो लोड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, लोड पी, इतना डिस्टेंस है एसेंट्रिसिटी पी। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर जम, मैक्सिमम है 22.42 और 22.42 कॉम्प्रेशन। पॉजिटिव मतलब क्या हुआ है, कॉम्प्रेशन, और नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है, टेंशन। तो कॉम्प्रेशन मतलब लोड इस तरफ जाएगा तो कॉम्प्रेस ही करेगा। तो ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, समझिए, एक रेफरेंस लाइन की तरह। यहाँ से नीचे की तरफ कॉम्प्रेशन है, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, और टेंशन है तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा। और इसको मैं इसके साथ ज्वाइंट कर देता हूँ। तो ये मेरा स्ट्रेस डायग्राम हो गया पी मैक्स, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया पी मिनिमम। या फिर आप सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम भी लिख सकते हो, और कुछ नहीं लिखना है तो सिर्फ वैल्यू लिख दो तो भी चलता है। वैल्यू लिखेंगे हम 22.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये हो गया 6.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये नेगेटिव पॉजिटिव नाम देना है तो दे दो ए बी, यहाँ पर ये बी, यहाँ पर ए। बोलो क्लियर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बराबर। एग्जाम्पल नंबर 2, स्क्वायर कॉलम, ए स्क्वायर कॉलम of 400 mm side carries a compressive load of 400 kN at the eccentricity of 100 mm on x-axis. Find maximum stress and minimum stress at the base of column, at the base of column। ठीक है, तो इतना डेटा है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले डेटा पढ़ेंगे। स्क्वायर कॉलम, स्क्वायर कॉलम मतलब क्या हो जाएगा, उसकी चारों साइड सेम है। अब जैसे चारों साइड सेम है, यहाँ पर एक साइड दी है 400 mm, तो ये भी 400 ही हो जाएगा।
ओके। तो 400/400 तो मतलब एरिया क्या हो जाएगा इसका, 400 मल्टीप्लाई बाय 400, मतलब 4×4 = 16 और 4 0 हो जाएगा इतना एरिया mm²। तो सिंपल है, आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, या उसको बाद में करते हैं, चलो आई को आगे बढ़ते हैं डेटा। कैरीज अ कॉम्प्रेसिव लोड ऑफ 400 किलो न्यूटन, मतलब लोड पी दिया हुआ है 400 किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे हम, 400 इंटू 10⁻³ न्यूटन एट द एसेंट्रिसिटी ऑफ 100 mm ऑन एक्स एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्स एक्सिस ऐसा करके बोला है, तो एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करने जाऊंगा तो ये एक्स एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई वाई एक्सिस, ये एक्स एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर लोड दिया हुआ है कुछ P, और कितना दिया हुआ है 100 mm, मतलब यहाँ से 100 mm, मतलब E की वैल्यू दी हुई है मुझे 100 mm। तो E इज इक्वल टू 100 mm हो जाएगा, राइट, ऑन द एसेंट्रिसिटी ऑफ 100 mm एक्स एक्स एक्सिस। देन तो फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मिनिमम स्ट्रेस, जो अभी किया था वैसा ही सब कुछ करना है, इसको मैं निकाल दे रहा हूँ अभी, ओके। अब आई मुझे फाइंड करना है, तो आई सिंपल फॉर्मूला है BD³ / 12, और वाई की फॉर्मूला कौन सी है, देखो डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं, वाई की फॉर्मूला कौन सी है, क्योंकि सर D/2। अच्छा, आई अपॉन वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, BD³ / 12 इंटू D/2, मतलब ये क्या हो जाएगा 6, और ये D एक निकल जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो आप, BD² / 6। ये क्या कौन सी किसकी फॉर्मूला आ गई, जेड की, जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई, ऐसा था ना। तो शायद आपको ऐसा लिखा है कि भाई जेड इज इक्वल टू BD²/6, तो वो सेम ही होता है, ओके। और ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल आई फाइंड करो, वाई फाइंड करो और वैल्यू पुट अप करो तो भी चलता है। तो बी कितना है 400 इंटू डी, 400 नो क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये कितना आ रहा है, डन। तो 2.13 × 10⁻⁴। वाई की फॉर्मूला कौन सी थी, सिंपल सर D/2, डी मतलब ये वाला था, ठीक है। तो 400/2 मतलब 200 ओके। तो सारी चीज़ें हैं मेरे पास, अब मैं सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू इंसर्ट करेंगे। सिग्मा जीरो इज इक्वल टू पी अपॉन ए, पी की वैल्यू है मेरे पास 400 इंटू 10⁻³ राइट। ए की वैल्यू यहाँ पर लिखिए 164 टाइम्स जीरो, तो सिग्मा जीरो मिलेगा। सिग्मा बी मीन्स एम अपॉन एम इंटू वाई अपॉन आई, एम फाइंड करना बाकी रहा मेरा, तो एम मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, m is equal to p into e, where p is equal to 400 into 10⁻³ into e 100, therefore m की वैल्यू हो जाएगी कुछ into 100, मतलब 400, हाँ 5, 400 into 10⁻⁵, फोर्स इंटू डिस्टेंस न्यूटन इंटू mm, न्यूटन इंटू mm। तो m की वैल्यू है 400 इंटू 10⁵ इंटू वाई मतलब है 200 अपॉन आई की वैल्यू जो है वो है 2.13 इंटू 10⁹ आप इसका आंसर फाइंड करो सिग्मा बी का।
आया? बोलो। हाँ तो आ गया ना, देखो ऊपर स्क्रीन पर देखो। और जैसा लास्ट टाइम किया था ठीक वैसा ही मुझे सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है। तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा जीरो प्लस सिग्मा बी, तो सिग्मा जीरो प्लस सिग्मा बी यहाँ पे रखेंगे तो सिग्मा मैक्स मिलेगा। सिग्मा जीरो माइनस सिग्मा बी में वैल्यू इंसर्ट करूँगा तो सिग्मा मिनिमम। अब ये आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो कॉम्प्रेसिव, और ये आंसर नेगेटिव आ रहा है तो टेंसाइल। मतलब जो लास्ट टाइम फिगर ड्रॉ की थी सेम फिगर, लास्ट एग्जाम्पल वाली फिगर। बोलो आवड़े? तो स्क्रीनशॉट ले लो आना। એક સર્ક્યુલર સેક્શનમાં પણ લઈ લઈએ છીએ આપણે, બરાબર છે? ઇઝી છે ને? આવું જ કંઈક કરેલ છે ને તમને, કે અલગ છે થોડું? ઇઝી છે. ચાલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ, એક સર્ક્યુલર સેક્શન માટે લઈએ છીએ. તો ડેટા એ સર્ક્યુલર કોલમ, સર્ક્યુલર તો એનાથી પણ ઇઝી, હા. સર્ક્યુલર કોલમ 450 mm in diameter carries a load of 600 kilonewton at an eccentricity of 100 mm. Full stop. Calculate maximum and minimum stress. Calculate maximum and minimum stresses for the column. Wait 5 मिनट है.